Welcome to all of you in today's lecture of class 9th chapter force and laws of motion. In today's lecture we will study about Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. Actually, what is Newton's first law of motion? And we will also study about inertia. Okay, inertia. And this Newton's first law of motion is also known as law of inertia. Okay, Newton's first law of motion is also known as law of inertia. So in this lecture today we will study about actually what is Newton's first law of motion, how it defines the definition of force, how it defines the force, and what is about inertia, and we will try to also take the topics inertia of rest of motion. Okay, so actually what is Newton's first law of motion? That suppose it states that suppose there is an object, suppose this is an object, okay, any ball like this we can say. So this is any object and this object is suppose at rest. This object is initially at rest, okay, means the object is at rest position. Then Newton's first law says that if the object is at rest position, it will remain in its rest position, okay, unless compelled by any external unbalanced force. ओके, मीन्स कहने का मतलब क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है तो ये ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा जब तक कि इस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा जाए। क्यों? तो बैलेंस फोर्स लगेगा तो तब भी ये रेस्ट में ही रहेगा, क्यों? तो बैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करता है। तो अनबैलेंस फोर्स चाहिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए। तो न्यूटन का पहला लॉ कहता है if an object is in its rest position, ये this is only one part of the law, object is its rest position, it will remain at its rest position unless compelled by any external unbalanced force. Okay, and suppose in another case, it is also for the case of motion, suppose this is an object and this object is suppose moving, suppose this object is moving, then the law, Newton's first law says that if any object is in moving position in a uniform linear motion, suppose any object is moving with in a uniform linear motion, then it will remain in its moving position or moving condition unless compelled by any external unbalanced force. यानी कि न्यूटन का लॉ क्या कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, दो बातें हैं देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही बना रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कंडीशन में है तो मूविंग पोजीशन में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया जाए। सो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब देखिए अभी हम लॉ को यहां पे लिखेंगे। अब इनर्शिया क्या होता है, पहले इनर्शिया को समझिए कि एक्चुअली इनर्शिया क्या है। ठीक, इनर्शिया क्या होता है कि जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट, any object opposes to any change in its position of rest or uniform motion, means suppose there is any object, then the object resists to change in its position. Okay, means क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पर है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अब हम अगर इस ऑब्जेक्ट पर मान लीजिए यहां पर मैंने एक बॉक्स बना दिया, मीन्स ये थोड़ा सा हैवी बॉक्स है, सपोज दिस हैवी बॉक्स, अगर हम इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, इफ वी आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है जनरली हम देखते हैं कि जब हम हल्का सा फोर्स लगाते हैं तो हम इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हम इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं ला पा रहे हैं, हम इसको मूव नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट की एक ऐसी टेंडेंसी है, ऐसी इसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि ये अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। यानी कि हम तो इसकी पोजीशन में चेंज करना चाह रहे हैं फोर्स लगा के, लेकिन ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज का अपोज कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट की अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज के अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक, सो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी or the inherent property of an object
to oppose any change in its position, either position of rest or position of moving position. यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से मूव कर रहा है, सपोज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से मूव कर रहा है, तो अगर हम उसको रोकना चाहें तो हमें उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। मीन्स वो क्या करता है, अपने पोजीशन में जो हम उसको रोकना चाह रहे हैं वो चाहता है कि वो मूवमेंट ही करता रहे, इसलिए वो हम अपने पोजीशन में चेंज होने का क्या करता है, अपोज करता है। मींस जैसे ही अगर कोई क्रिकेट की बॉल आ रही है, अगर जैसे हम क्रिकेट की बॉल को कैच करते हैं तो बॉल क्या है, मूविंग कंडीशन में ही है, और बॉल की वहां पर ये प्रॉपर्टी होती है कि मूविंग पोजीशन में ही रहे, और इसलिए हम हाथ लगाते तो हमें फोर्स लगता है कि तो बॉल अपोज करती है। दूसरा, जनरली हम जब गाड़ी में बैठते हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के टाइम पर पहले हम बस भी रेस्ट में होती है या कोई भी गाड़ी अगर रेस्ट में है, हम भी गाड़ी के साथ रेस्ट में है, अचानक से अगर गाड़ी चलती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है, यानी कि हमारी बॉडी पहले रेस्ट में थी तो बॉडी हमारा रेस्ट में ही रहना चाहता है। होता क्या है कि जैसी गाड़ी अगर स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है वो गाड़ी के साथ मूविंग पोजीशन में आ जाता है, लेकिन होता क्या है, हमारा जो अपर पार्ट होता है बॉडी का वो रेस्ट में ही बना रहना चाहता है, इसलिए अपर पार्ट को पीछे की ओर एक झटका लगता है। That is inertia of rest. We will discuss later now inertia of what is inertia of rest and what is inertia of motion and inertia of direction. Means actually what is the main thing? What is the inertia? Inertia is mean that any object opposes to any change in its position of rest or position of uniform linear motion or position of direction. Okay? So or direction यानी कि moving direction. Okay? तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की अपने पोजीशन ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में के पोजीशन में अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है वो इनर्शिया है। ठीक, अब यहाँ पर एक और चीज बात करते हैं, जैसे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट में ही बना रहना चाहता है और या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में ही बना रहना चाहता है जब तक कि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाए। वही यहाँ पर इनर्शिया में भी है। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट किसी चेंज का क्या करता है, अपोज करता है, मींस वो उसी प्रॉपर्टी में बना रहना चाहता है, इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि रेस्ट में है तो रेस्ट, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है जनरली तो रेस्ट में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर मूविंग पोजीशन में है तो मूविंग पोजीशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाए। इनर्शिया क्या कह रहा है, इनर्शिया है कि ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में होने वाले चेंज का अपोज करता है। ओके, कोई भी उसकी पोजीशन, कोई चाहे रेस्ट की पोजीशन है या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, उसमें उसके पोजीशन में होने वाले चेंज के अपोज करने को इनर्शिया कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब दोनों बातें एक ही हैं कि यानी कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में होने वाली चेंज का अपोज करना चाहता है, मींस वो उसी पोजीशन में बना रहना चाहता है। दैट्स व्हाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, तो यहां पर अब दूसरी बात एक और यहां पर आती है कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा। तो इसको बताने से पहले मैं यहां पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन यहां पर लिख के शो कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जनरली डेफिनेशन हमारी क्या बनी, उसको मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ पहले। ओके, नाउ आई हैव रिटन हियर द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअली व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। सो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन states that an object maintains its state of rest or of uniform linear motion unless compelled by some external unbalanced force applied on it. Okay, मीन्स कहने का मतलब वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मेंटेन करके रखेगा अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि रेस्ट में ही रहेगा या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। आगे देखिए, हमने पढ़ा द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। Inertia, due to this reason the first law of motion is also called the law of inertia. Okay, so what is inertia? We can write that the tendency of an object to stay at rest or of uniform linear motion, or we can also say that
the tendency of an object to oppose any change in its position of rest or position of uniform linear motion. Okay, and you can note down this one. Okay, this is the definition of Newton's first law of motion. We will discuss the examples. Okay, on means Newton's first law of motion generally gives the idea of about inertia. Examples will be from inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. So first I want to tell you one more point. Suppose I am having two objects. Okay, first one, this one is a lighter object placed over a surface, and in second case the object is heavier object. Okay, suppose this is lighter object, and this one is heavier object. Okay, so we need a larger force to displace this one object, to, or we can say to change in its position of rest. We need here the force F should be large here. Okay, and for displacing its position or to change its position, force is we can displace it by a less force in comparison to these two cases. Means मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम एक लाइटर ऑब्जेक्ट ले, हल्का ऑब्जेक्ट, और अगर एक हम हेवियर ऑब्जेक्ट ले, तो क्या होता है, लाइटर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस या उसकी रेस्ट पोजीशन में चेंज करने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि हेवियर ऑब्जेक्ट के केस में क्या होगा, उसकी पोजीशन को डिस्प्लेस करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी. तो यानी कि कौन अपने पोजीशन में, देखिए पोजीशन में चेंज का तो दोनों ही अपोज करेंगे, लाइटर ऑब्जेक्ट भी करेगा, हेवियर ऑब्जेक्ट भी करेगा. तो कौन सा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज का ज्यादा अपोज करेगा, सो दैट ऑब्जेक्ट इज द हेवियर ऑब्जेक्ट. हेवियर ऑब्जेक्ट ज्यादा अपोज करेगा, तो इट मींस किसका इनर्शिया ज्यादा है, जो ज्यादा अपोज करेगा उसका उतना ज्यादा इनर्शिया हो जाएगा. तो हेवियर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा. हेवियर ऑब्जेक्ट मींस इसका मास ज्यादा है. ओके, अगर मास किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होता है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है. सो वी कैन से इनर्शिया इज द मेजर, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया. मींस if mass is more, then inertia will also be more. If mass is less, then inertia will be less. So inertia depends on directly to the mass of the object. Okay, so you can note down this one. Then I will write again one more point. Okay, so here this is the point, main one. Mass of an object is the measurement of its inertia. Mass of the object is the main measurement of its inertia. Means a heavier object has larger inertia than a lighter object. Means a heavier object has larger inertia in comparison to the lighter object, because it will oppose more in comparison to it in its any change in its position of rest or uniform linear motion. So you can write this one. Mass of an object is the measurement of its inertia. You can take a screenshot for this one. So generally, what is inertia? We can define the inertia by you can write this one. Okay, we can define inertia in this way also. Okay, inertia, actually you can write one you can write about inertia. One definition is this one. Okay, the tendency of an object to stay at rest or keep moving with the same velocity is called inertia. Or we can also say that the tendency or the inherent property, because this is the property of the object, the inherent property of an object to oppose any change, the inherent property of an object to oppose any change in its state of rest or of uniform linear motion, or of uniform linear motion is called inertia. Okay, तो हम इनर्शिया को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. हम क्या कह सकते हैं, देखिए, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया. द हेवियर ऑब्जेक्ट विल अपोज मोर देन द लाइटर ऑब्जेक्ट. दैट्स व्हाई द इनर्शिया ऑफ द हेवियर ऑब्जेक्ट इज more in comparison to the lighter object. Okay, so now we will discuss about the types of inertia and what are the examples of Newton's first law of motion.
Okay, so generally the example, you know, suppose whenever we play कैरम, ओके, कैरम बोर्ड, जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो जब कैरम में जो हम वहाँ पर उसके कैरम्स की जो कॉइन्स हैं, जो उसकी गोट्स हैं, और जो हमारे पास अगर हम उसके जो भी उसकी कॉइन्स हैं कैरम की, अगर हम उनको एक के ऊपर एक अगर हम ऐसे लगाते जाते हैं, ठीक है, तो कैरम में सपोज ऐसा है, आप मान लीजिएगा, तो जनरली हम क्या करते हैं, इसमें जो सबसे बॉटम पर जो है, अगर हम यहाँ से स्ट्राइकर है, सपोज दिस इज स्ट्राइकर, आई एम नॉट ड्रॉइंग द प्रॉपर फिगर, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। कैरम में क्या होता है, अगर हम इस स्ट्राइकर से अगर हम हिट करें सबसे बॉटम वाले इसको, ठीक है, जो यहाँ पर कॉइन है, इसकी जो गोट है, तो जब हम इसको हिट करते हैं तो क्या होता है कि आपने बहुत बार खेलते समय देखा होगा कि केवल बॉटम वाली जो ये कॉइन है कैरम की, ये यहाँ से खिसक के चले जाएगी आगे, और जो बाकी होती है वो ऐसे ही वहीं पर उसके बाद वैसे ही बैठ जाती है, मीन्स बाकी की पोजीशन वही रहेगी, केवल बॉटम वाली चली जाएगी। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कैसे, हम ये सबकी प्रॉपर्टी क्या थी, जितनी भी यहाँ पर कॉइन्स हैं कैरम की, सबकी प्रॉपर्टी ये थी कि सबके सब रेस्ट में बना रहना चाहते हैं, लेकिन हमने जैसे ही नीचे हिट किया बॉटम वाले को तो वो तो मोशन में आया, लेकिन बाकी की टेंडेंसी क्या है, टू रिमेन एट इट्स रेस्ट पोजीशन, वो रेस्ट में ही रहना चाहती हैं, इसलिए बाकी के बाकी वहां पर ऐसे ही सेट हो जाते हैं। और दूसरा एग्जांपल जनरली क्या होता है कि अगर मैं एक ग्लास ले लूं, ठीक है, आप जनरली कोई भी ग्लास ले लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर से सपोज कोई एक कार्डबोर्ड रख दें, अगर हम हल्का सा अगर क्या रख दें, इसके ऊपर से एक कार्डबोर्ड अगर ऐसे रख दिया जाए और उसके ऊपर मान लीजिए 5 रुपीज कॉइन रख दी जाए, ओके, ₹5 की एक कॉइन रख दी जाए, तो जनरली क्या होता है, अगर हम केवल इस कार्डबोर्ड को हिट करेंगे तो आप देखेंगे कि कार्डबोर्ड तो यहाँ से फिसल के आगे चले जाएगा, मूवमेंट में आ जाएगा, लेकिन जो एक कॉइन होगी इस गिलास के अंदर गिर जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जो कार्डबोर्ड और दोनों की प्रॉपर्टी पहले रेस्ट में बने रहने की है, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये तो मूविंग कंडीशन में आ जाएगा कार्डबोर्ड, लेकिन कॉइन रेस्ट में ही बना रहना चाहेगी वहीं पर, इसलिए कॉइन क्या होगा, कार्डबोर्ड खिसक जाएगा, कॉइन इसके अंदर यहां गिर जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यहां पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है। ऐसे ही देखिएगा, अगर हम किसी पेड़ को जब हिलाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उस पेड़ में फल नीचे गिरने लग जाते हैं। मान लीजिए कि ऐसे टहनी है और इस टहनी में ये कोई फल लगा हुआ है, कोई भी फ्रूट ऐसे लगा हुआ है, अगर हम टहनी को हिलाएंगे, इफ वी शेक दिस ब्रांच ऑफ द ट्री, देन व्हाट विल हैपन, ये जो टहनी है ये मूवमेंट में आएगी, लेकिन फल यहाँ पर ऐसा ही रहना चाहेगा रेस्ट में, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे हम हिलाएंगे टहनी ये चलेगी, ये आपका फ्रूट नीचे गिर गया, मीन्स दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स आपका इसकी फ्रूट की टेंडेंसी है टू रिमेन एट इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। If we shake the branch of the tree, then the branch of the tree comes at rest, but the fruit remains at rest position. Hence that's why it falls down. Okay. And in the similar way, if we beat any carpet, then dust comes out of it. अगर हम किसी कारपेट को अगर हम बीट करते हैं तो उसमें से डस्ट क्या होती है, बाहर आ जाती है। ओके, अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए, तो इसके लिए सपोज हमारे पास ये मान लीजिए कारपेट का सरफेस है, यहाँ पर डस्ट है, हम इस कारपेट को जब बीट करेंगे तो कारपेट क्या आएगा, मोशन में आएगा, तो कारपेट मोशन में आएगा, लेकिन डस्ट रेस्ट में ही बना रहना चाहिए, तो कारपेट मोशन में आना मीन्स ऐसे पीछे हट जाएगा। ये सब कुछ यहाँ पर डस्ट पार्टिकल है, कारपेट ऐसे मोशन में आएगा तो कारपेट पीछे हट जाएगा और डस्ट नीचे गिर जाएगा। सो व्हेन वी बीट अ कारपेट विथ अ स्टिक, देन डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। ऐसे ही अगर हम चलते हुए बस में जा रहे हैं, अगर बस सपोज इनिशियली बस रुकी हुई थी, हम भी रुके हुए थे और बस एकदम से चल दी, तो हमें क्या होता है, पीछे की ओर एक झटका लगता है। दैट इज, इसका रीजन क्या है, देखिए, इसका रीजन हमारा ये है कि इनिशियली हमारा बस और हमारी बॉडी दोनों ही रेस्ट में होती हैं, तो प्रॉपर्टी क्या है हमारी बॉडी की, रेस्ट में बने रहने की प्रॉपर्टी। जैसे ही बस आगे की ओर चलती है तो हमारा बॉडी का लोअर पार्ट जो कि बस के साथ कांटेक्ट में होता है वो तो आपका मोशन में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट स्पेशली हेड
जो कि रेस्ट में बना रहना चाहता है उसको एकदम पीछे की ओर हमको ऐसे करके झटका लगता है. ओके, इट मीन्स दैट दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ रेस्ट. Okay, in the same way inertia of motion, okay, generally we know whenever any bus moves, suppose bus is in moving condition and we are also sitting inside the bus, so our body also in the moving condition. Okay, but what happens when the driver applies brakes, suddenly the driver applies brakes, we falls in the forward direction. Okay, we falls in the forward direction. What happens there, the body is in the moving position and body wants to remain it in the moving position. When driver applies brakes, then body opposes to the change in the moving position due to inertia of motion. Okay, body opposes to any change in the position of movement. That's why we fall in the forward direction. Means अगर कोई बस चल रही है, अगर चलती हुई बस में अगर हम बैठे हुए हैं तो क्या होता है, अगर ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगाता है तो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में झटका लगता है. क्यों? क्योंकि तो बॉडी बस के साथ क्या है, उसी पोजीशन में बने रहना चाहती है, मूविंग पोजीशन में. इसलिए ड्राइवर अगर ब्रेक लगाता है तो हमें आगे की ओर एक झटका लगता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. ओके, कि तो बॉडी मोशन में चेंज का अपोज करती है. ऐसे ही जनरली जो ड्राइवर जब भी गाड़ी चलाता है तो सीट बेल्ट लगाने के लिए बोला जाता है. सीट बेल्ट क्यों? तो अगर कभी ब्रेक लगता है तो आगे की ओर झटका लगता है, उसलिए कोई तीव्र जो बहुत ही हाई झटके से बचने के लिए. ओके, मीन्स इट इज नेसेसरी टू वेयर द सीट बेल्ट्स बाय द ड्राइवर्स. एंड लगेज इज टाइड विथ ए रोप ऑन द रोप. ओके, जनरली इन द व्हीकल्स, मीन्स जनरली गाड़ी के छत में अगर कोई सामान रखा जाता है तो उसको रस्सी के द्वारा बांध दिया जाता है, अदरवाइज अगर गाड़ी रुकेगी तो वो गिर सकता है. This is the example of Newton's first law of motion, inertia of motion. So there are so many examples based on Newton's first law of motion in our daily life. So actually these are in the form of types of inertia. So how we can explain these examples of Newton's first law of motion? We can explain these examples of Newton's first law of motion in the form of types of inertia. Okay, so next lecture is types of inertia. So types of inertia, actually by this conclusion we can say that inertia is of three types. Okay, so inertia is also in the form of direction also. Inertia is of three types. Number first one, inertia of rest. Number first one is the inertia of rest, and number second, inertia of motion, and number third, inertia of direction. Okay, so these are the three types of inertia. Okay, so these are the three types of inertia, you can note down it. Okay, now after then I will write here about inertia of rest. Okay, which I explained you earlier on, inertia of rest and examples of inertia of rest. Okay, okay, now you can note down about the inertia of rest. I explain you in detail and written also here. Inertia of rest, the inherent property of an object to oppose any change in its state of rest by itself is called the inertia of rest. Okay, examples. First example I explain you, when a bus or a car suddenly starts moving forward, the passengers fall backward. There is explanation also, because sometimes the explanation is asked in exams. Okay, initially the bus or the car as well as passengers are in a state of rest. I explain you again. I am explaining, when the vehicle suddenly starts moving, then what happens, the lower part of the body of a passenger being in contact with the seat comes in a state of motion with the vehicle. However, the upper part of his body, means of passenger, especially head, tends to remain at rest due to inertia of rest, so the passenger fall backward. Okay, this is the example of inertia of rest, or we can say Newton's first law of motion. Another example, when a carpet is beaten with a stick, dust particles comes out of it. I explain you, you can also write about its explanation. Okay, third, when we shake the branch of a tree, some of the leaves
flowers and fruits fall from the tree. I explained this one also. Fourth one, if we quickly jerk a piece of paper kept under book, then book does not move due to inertia of rest. Okay, you can note down this one. Then I will write here inertia of motion and its examples. Okay, now you can see here inertia of motion. I explained you earlier on, and now these are the notes of inertia of motion. What is inertia of motion? The tendency of an object to oppose any change in its state of uniform linear motion by itself is called the inertia of motion. Examples: first one, when a driver of a bus running at a high speed, means bus is running at a high speed and driver suddenly applies brakes, the passengers experience a forward push. You can write the explanation about it, because initially the passengers and the bus driver and the bus both are in moving position. When applies brakes, then lower part of the body comes in motion, but the upper part wants to remain in motion. It opposes the change in motion. That's why the passengers experience a forward push. Okay. Next example: a luggage is usually tied with a rope on the roof of a bus or a car. Next, the driver and passengers in a car should wear seat belts. Very important. So this is the example of Newton's first law of motion, that is inertia of motion. Okay. In a game of cricket, you generally observe that in a game of cricket, a fast bowler comes running from a long distance before throwing the ball. This is example of inertia of motion. Okay. A person fall forward with his face downward while getting down from a running bus or a train. Means whenever any passenger comes down, okay, means while he getting down from a running bus or train, then he falls in the forward direction. Okay, so these are the examples and about inertia of motion. You can take the screenshot and you can note down it. Okay, then I will write about inertia of direction. Okay, now next one is the inertia of direction. The tendency of an object to oppose any change in its direction of motion by itself is called the inertia of डायरेक्शन. ओके, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा उसके डायरेक्शन में होने के चेंज को अपोज करना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है. एग्जांपल से आप समझ जाएंगे. व्हेन अ फास्ट मूविंग बस और कार नेगोशिएट्स अ कर्व ऑन द रोड, पैसेंजर्स ऑफ द बस और कार एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड पुश. दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. जनरली क्या होता है, अगर हम फास्ट मूविंग बस और कार में बैठे हैं, बस अगर फास्ट मूव कर रही है और एकदम से अगर मोड़ पर अगर गाड़ी को मोड़ दिया जाए तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में एक क्या लगता है, आउटवर्ड पुश लगता है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की तो बॉडी उस पोजीशन जो गाड़ी के मूवमेंट से पहले की पोजीशन में बना रहना चाहती है, उस जो पोजीशन में चेंज मीन्स मोड़ जो गाड़ी है यहाँ पर वहां पर हम मोड़ में जो मुड़ रहे हैं उसके उस मुड़ने का अपोज करती है. दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन में चेंज का अपोज करती है. तो व्हेन अ फास्ट मूविंग बस और कार नेगोशिएट्स अ कर्व ऑन द रोड, then passengers of the bus or car experience an outward push. Another one, let a stone tied to a string be reeling in a horizontal circle. Okay, if the string breaks suddenly the stone flies off tendency. मान लो हमने एक स्ट्रिंग से, एक रस्सी से एक पत्थर को बांधा है और हम उसको घुमा रहे हैं. एकदम से अगर स्ट्रिंग अगर टूटती है तो एकदम से स्टोन टेंजेंशियली बाहर निकल, जैसे अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं तो यहाँ पर अगर छूटेगा तो इधर की डायरेक्शन में आएगा, यानी कि अगर यहाँ पर अगर हम जो घुमाएं के छोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा, यानी कि उस मोशन में होने का चेंज का क्या करता है, अपोज करता है. ओके, so this is about the inertia of direction. So in today's you can take the screenshot of this one also and you can write these notes. Okay, so in this today's lecture we have discussed about the Newton's first law of motion, inertia, and types of inertia, inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction, and Newton examples based on Newton's first law of motion. So this is totally related to our daily life, so please study it. Okay, and you have to note down this one and be regular in your studies. And that's all for today's lecture. Thank you so much.